हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। भगवान की अहेतु की कृपा से हमें शिला प्रभुपाद मिले हैं और शिला प्रभुपाद ने हमें गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन दिया है। गोलोक से लाके ये इस माइक जगत का नहीं, इस भौतिक जगत का नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये गोलोक का प्रेम धन है, ये हमें शिला प्रभुपाद ने दिया है। हम शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा की श्रृंखला में इतने सारे भक्तों से प्रभुपाद की लीलाएं, प्रभुपाद का हम गुणगान सुन रहे हैं। आइए और कुछ लीलाएं सुनते हैं और कुछ गुणगान सुनते हैं और अपने कानों को, अपने हृदय को पवित्र करते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। On this auspicious day of Vyasa Puja, I thank Srila Prabhupada from bottom of my heart for everything, And I'd like to thank His Grace Hari Mohan Prabhuji, my Siksha Guru, who I met through my spiritual mother. I'm not qualified enough to understand the Bhagavad Gita, लेकिन जिस तरह वो समझाते हैं, it's like a spoon feeding to me. And after knowing and seeing him, I got to know that कि यदि वैष्णवास ऐसे होते हैं, इतने अल्टीमेट, जो भगवत गीता अपनी ज़िंदगी में लगा के जीना जानते हैं। Being an engineer, it's hard to think कि I can leave my profession and dedicate my life to Srila Prabhupada, my Siksha Guru. He has done when he was computer science engineer on his own life, and he left everything and surrendered to Krishna and followed the path of Srila Prabhupada. मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे होंगे। चांस मिला जब मैं ताइवान आया, यहाँ पे एक डिवोटी से मिला। वो डिस्क्राइब कर रहे थे एक दिन कि ही सॉ श्रील प्रभुपाद from the little far distance. Srila Prabhupada had visited his city, and Prabhupada ji was surrounded by senior devotee. Krishna Baldev ji Prabhu just saw him and remembered that he decided he changed his life. A glimpse can change the life of a person. Then how powerful Prabhupada would have been. I'm very lucky, and I know everyone is lucky to have Srila Prabhupada as a spiritual masters. I wish birth after birth Srila Prabhupada to be my spiritual master. And thank you for lightening me and changing my life and bringing my life little discipline. Thank you so much. नमामि विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। This auspicious occasion of Vyasa Puja Smaranam, every year it gives me this amazing opportunity to spare a conscious thought about how authentically different the life of all the people that are following the teachings of Prabhupada have become, just because of one step that he took 70 years ago, at the age of 70, as an old man, to travel oceans to ensure that the name of Lord Krishna and the glories of Chaitanya Mahaprabhu and the methods of bhakti, the teachings of Lord Chaitanya, they reach all over the world. I keep thinking about how different our lives, how different the lives of everyone that
follows Prabhupada's teachings would have been, and how he has elevated the quality of our lives in more ways than others. I keep thinking about the kind of grace that Prabhupada has brought into our lives with the practice of Krishna consciousness, with the practice of the things that Krishna consciousness entails. Not only are we people who are worshippers of Lord Krishna, but it has brought about an immense amount of grace in our lives based on the practices that we follow on our day-to-day basis. I sincerely thank Prabhupada. I consistently think about how important it has been, that step that he has taken so many years ago that made such huge changes in our life. So in the spirit of that change, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा माँ, सभी को हरे कृष्णा। मेरा नाम आकाश धर है, मैं कोलकाता में रहता हूँ और रिसेंटली मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ टुवर्ड संगीता माता, जिन्हें मैं माँ कहकर बुलाता हूँ, कि मुझे कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के अवसर पर 2 बातें कहने को मिला। मैं इसी से प्रारंभ करना चाहूँगा कि मुझे लास्ट ईयर, दैट इज़ अप्रैल 2023 में, जब मैं और मेरी बड़ी बहन लखनऊ पहली बार जाते हैं, अपनी बड़ी मौसी का स्वास्थ्य खराब होने का खबर आने पर, तब हमें वहाँ राजाजीपुरम में श्री हरिमोहन दास प्रभु जी द्वारा किए गए संकीर्तन के आखिरी दिन पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, और जहाँ हम पहली बार प्रभुपाद जी के नाम कीर्तन सुने और आनंद लिए। फिर कुछ महीनों बाद इसी साल 8 जनवरी 2024 में मेरे जन्मदिन पर हमारे घर कोलकाता में माँ आती है और मुझे प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र पुस्तक दिस वन और अपने ही भगवद गीता से उनका एक यूनिक स्माइलिंग चित्र भी देते हैं, दिस वन। मैं बहुत ही खुश था उस दिन इस दिव्य गिफ्ट को पाकर, और फिर धीरे धीरे मुझ में कुछ परिवर्तन भी आने लगा जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे फिर हर रोज़ माँ द्वारा प्रभुपाद जी के डेली मैसेजेस मिलने लगा, जिसमें मुझे अपने क्वेश्चंस का जवाब भी ऑटोमेटिक मिलने लगा। फिर मुझे माँ से यह भी ज्ञात हुआ कि प्रभुपाद जी हम सभी से अपने इस डेली मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मेरा पहले से अब इंटरपर्सनैलिटी में बहुत ही परिवर्तन आया है, जो मुझे दूसरों से भी सुनने को मिलता है। पहले मैं छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता था और दूसरों से झगड़ भी जाता था, जिससे मेरे माता पिता को मेरे लिए एक टेंशन सा लगा रहता था। मैं तो अपनी बड़ी बहन से भी झगड़ जाता था, बट अब मुझे इन सारी भौतिक चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अब ये सारी चीज़ें एक बचपना से लगता है, जो कि एक फॉल्स ईगो से प्रेरित था और जो मुझे इस मटेरियल जगत के चीज़ों से बंधे रखता था। मैं अब यह देखता हूँ कि मेरे माता पिता अब बहुत निश्चिंत रहते हैं मुझे लेकर, और मेरे मित्र भी मुझसे अब अपना वक्त बिताना पसंद करते हैं और मुझसे कृष्ण भक्ति को सुनना पसंद करते हैं, और इससे इन्फ्लुएंस होकर 2 जन हमारे भगवद गीता ग्रुप को भी ज्वाइन करते हैं। मैं अब मांसाहारी से शाकाहारी हूँ। मुझे अब यह ज्ञात हो गया है कि इस संसार में सभी कुछ अस्थायी है, बट केवल श्री कृष्ण ही नित्य एवं स्थायी रूप से हमारे माता पिता और मित्र है, जो हमारे इस आत्मा से युगों युगों से जुड़ित है। मैं अब सभी को समानतापूर्वक देखता हूँ। अब मैं पहले से बहुत खुश भी रहने लगा हूँ, जिससे मेरा पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट आया है। इन सारे परिवर्तन के पीछे मैं फर्स्ट क्रेडिट अपनी बड़ी मौसी को देना चाहूँगा, जिसने मुझे जपमाला दिया एवं भगवद गीता दिया और माँ से भी परिचय कराया है। सेकेंडली मैं माँ को क्रेडिट देता हूँ, जिनसे मैं हर रोज़ कृष्ण भक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करता रहता हूँ। वे मुझे श्री कृष्ण के कमल चरणों में समर्पण एवं गुरु के चरणों में समर्पण करना सिखाती रहती है। एट लास्ट मैं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ,
जो हम सभी के सर्वोच्च गुरु भी है। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। I was born in the darkest ignorance, and my Guru Maharaj opened my eyes with the torch of knowledge, and I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my Guru Maharaj. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances unto your lotus feet on your auspicious day of your Vyas Puja. Your divine grace has not only nurtured our soul with spiritual progress and protected us from Maya, but also showered unlimited mercy upon us. By empowering us, your soldiers has expanded your mission under your continuous demand in day by day. By your mercy, the life and the body changes at the time of initiation, meaning change of karma. It is a fact that to be accepted without any argument. Srila Prabhupada, only you have the power to do so, being a pure devotee and the savior of the devotees. Srila Prabhupada, you are a pure devotee resident of spiritual world who came down for all of us to this planet to immerse us in the love of Krishna. We are so fortunate that we have come in a touch with you. My real aim of my life is to satisfy you with spreading more and more Krishna consciousness in this life, and also chant, dance and take prasadam, go back home, back to Godhead. Thank you so much, Prabhupada, for making me a human from animal in this life. Please accept me and my serving so that I should serve the Supreme Personality of Godhead with intense love and care. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna everyone. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Ma, for giving me the opportunity to say something about Srila Prabhupada Ji on the special occasion of Vyas Puja. I want to share you all about how Prabhupada Ji has always been around me and guided me throughout taking my decisions. मैं अपनी छोटी सी बात व्यक्त करना चाहूँगी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई। ऐसा है कि जब से मैंने भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ किया है, मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखा है। Although it took place gradually, but the outcome is really surprising. मेरी बड़ी मौसी ने मुझे और मेरे भाई को पिछले वर्ष जन्माष्टमी के दिन अपनी ही पढ़ी हुई भगवद गीता दी थी। हालांकि उनकी देहांत हो गई है, पर हम जब भी गीता पढ़ते हैं हमें यही एहसास होता है कि हमारी बड़ी मौसी और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी और कृष्ण के पास ही गई है। और जाते जाते वो हमें इस भक्ति के मार्ग पर छोड़ गई है, जिससे कि हमें अब इन भौतिक चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से ये जान गए हैं कि वी आर नॉट द बॉडी बट द सोल एंड द इटर्नल सर्वाइवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। मैंने अब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, पर उसके बाद आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड टू चूज़ माई फर्दर पाथ टू प्रोसीड एंड आई ऑफन यूज टू गेट स्ट्रेस्ड ऑफ वेरियस थिंग्स, बट बाय द ग्रेस ऑफ श्रीला प्रभुपाद जी, he has always shown me the best way possible, and now I have complete faith upon him and Govind that I need to surrender only upon him and the rest will be assured automatically. So these are the various things I have learned from our spiritual Guru Srila Prabhupada Ji. And last but not the least, I want to thank my Guru Sangeeta Ma, who has always been our great support and taught us well about Prabhupada Ji and always encouraged us to do bhakti along with performing our daily task as a student. Thank you Srila Prabhupada Ji and Ma for providing us with good guidance about the real transcendental knowledge towards spiritual world. Hari Bol, Radhe Radhe. हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। हे प्रभुपाद जी, आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि आपने जो भी बुक्स लिखी है हमारे कल्याण के लिए, मैं उन्हें पढ़ सकूं, ऐसी कृपा कर दीजिए।
आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं हमारे कल्याण के लिए, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं उन्हें पढूं। ये विनती है आपके चरणों में प्रभुपाद जी कि मेरा मन आपकी बुक्स पढ़ने में लगा दीजिए। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो मुझे श्रील प्रभुपाद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि वो इस्कॉन के फाउंडर हैं और वो 69 इयर्स ऑफ एज में अमेरिका गए थे कृष्णा कॉन्शियसनेस को सभी को इसके बारे में सभी को बताने के लिए। पर उनका जो डेली का स्ट्रगल था और प्रभुपाद ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है ताकि हमें ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता चल पाए और हम इससे बेनिफिट हो पाए। और एट द सेम टाइम प्रभुपाद कितने हम्बल थे, कितने काइंड थे और कितने टॉलरेंट थे। और भी बहुत क्वालिटीज़ हैं प्रभुपाद की जो मैं नहीं बता सकती। तो ये सब मुझे पता चला जब मैंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा। तो आज मैं उसी में से प्रभुपाद के कुछ पास टाइम्स बताना चाहूँगी। तो प्रभुपाद जब इंडिया में थे और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो 1950s के अराउंड, तो वो टाइम इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर प्रभुपाद के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम था। उस टाइम उनके पास कोई रहने का फिक्स्ड प्लेस नहीं था। प्रभुपाद थोड़े दिनों के लिए कहीं पे रुक जाते थे, कभी किसी मंदिर में रुक गए, कभी किसी पायस इंसान ने उनको अपने घर पे थोड़े दिनों के लिए रोक लिया, कभी किसी वेल्दी अमीर इंसान ने उनसे इम्प्रेस होकर उनको अपने घर पे रोक लिया, पर उनका कोई फिक्स्ड स्थान नहीं था। और उस समय दिल्ली में चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, प्रभुपाद रोज़ बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते थे। प्रभुपाद ने पूरी सर्दी बिना एक जैकेट के निकाली और जब वो अपनी मैगज़ीन प्रिंट करवाने जाते थे तो उनसे उनका प्रिंटर भी पूछता था कि आप क्यों इतना सब कुछ सह रहे हो, आप क्यों इतना कुछ कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये मेरा मिशन है। और गर्मी के टाइम पे भी जब टेम्परेचर 114 डिग्री तक पहुंच जाता था, प्रभुपाद फिर भी रोज़ निकलते थे बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उनको हीट स्ट्रोक भी एक बार आ गया था जिससे वे सड़क पे गिर गए थे और एक बार उनको एक गाय ने धक्का भी दे दिया था जिससे वो गिर गए थे। पर फिर भी प्रभुपाद इस सब के बावजूद रोज़ जाते थे बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और फिर जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे और प्रभुपाद ने 26 सेकेंड एवेन्यू में अपना सेंटर खोल लिया था, तो वहाँ पे हर संडे प्रभुपाद फीस्ट रखते थे और प्रभुपाद सारा प्रसाद खुद बनाते थे। और प्रभुपाद फिर बड़े प्रेम से सबको सर्व करते थे। सब लोग बैठ जाते थे और प्रभुपाद खुद सबको सर्व करते थे। और प्रभुपाद पूछते भी रहते थे अगर किसी को कुछ और चाहिए, प्रभुपाद खुद से पूछते थे क्या आपको ये चाहिए, क्या आपको ये चाहिए, और फिर बड़े प्रेम से दोबारा देते थे। कोई अगर पूरा पेट भर भी खा ले फिर भी प्रभुपाद उसको पूछते थे कि और लो। तो प्रभुपाद इतने प्रेम से सबको सर्व करते थे प्रसाद। और जब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए थे तो वहाँ पे प्रभुपाद रात को 1 बजे उठ जाया करते थे और क्या करते थे, ट्रांसलेशन करते थे ताकि हमें ये बुक्स पढ़ने को मिले। प्रभुपाद ने इस सब का ट्रांसलेशन किया और सब कुछ सैक्रिफाइस करके ट्रांसलेशन किया। तब रात को 1 बजे वो उठ जाते थे और उस बुक में ये लाइन भी लिखी थी कि द थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम वाइडली इंस्पायर्ड हिम टू राइज एवरी नाइट एंड ट्रांसलेट। तो ये सब पढ़ के मुझे पता चला कि प्रभुपाद ने कितना कुछ किया है ताकि हमें ये बुक्स मिल पाए, सब सारे श्लोक्स के ट्रांसलेशन मिल पाए, हमें उनके परपट्स मिल पाए और हम ये समझ पाए कि हमें करना क्या है और भगवान ने हमें क्या करने को बोला है और हम क्या क्या गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरी भी बस यही प्रार्थना है कि मैं भी प्रभुपाद के मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और मैं भी कृष्ण की भक्तों की प्रभुपाद की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। एक बार प्रभुपाद ऐसे यूरोप में थे,
ना वहाँ पे एक कोर्ट केस हो गया प्रभु इस्कॉन के ऊपर कि ये लोग एक कल्ट हैं। द मीनिंग ऑफ कल्ट इज़ लाइक जब आप किसी एक पर्सन को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हो। जैसे ऐसे ही जो है इस्कॉन के ऊपर एलिगेशन लग गई थी कि जो इस्कॉन के जो सब लोग हैं वो इस्कॉन एक कल्ट है। तो कोर्ट केस हो गया। तो प्रभुपाद ने फिर प्रभुपाद के जो एक शिष्य थे वो आए, उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर ये जो है मतलब बोला गया है कि हम लोग एक कल्ट हैं। प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं। इतना सुन करके ही मतलब लोगों को टेंशन हो जाती है। हम लोगों को भी कुछ अगर थोड़ी बहुत चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही बोल दिया जाए तो बहुत टेंशन हो जाती है। प्रभुपाद ने इतनी बड़ी चीज़ पे भी वो बहुत एकदम आराम से ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सब वही कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में गए। फिर वहाँ पे जो है जो जज थे उन्होंने बोला, फिर प्रभुपाद ने जो है एक श्लोक वहाँ पे बोला, उसका वहाँ पे व्याख्या सब करी। ठीक है, पहले दिन ये चला, ठीक है, दूसरे दिन भी चला, ठीक है। पूरी की पूरी जो पूरा कोर्ट था वो भागवतम की क्लास में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद तीसरे दिन भी यही चला। बट तीसरे दिन फिर जज ने पूछ लिया कि ऐसे आपके पास कितने सबूत हैं। तो प्रभुपाद ने बोल दिया कि ऐसे हमारे पास 18,000 सबूत हैं। तो जज ने उसी टाइम पे बोल दिया कि ठीक है, ये जो है यहीं पर ख़त्म होता है कि आप लोग प्रामाणिक हैं, ये हमने मान लिया। अब आगे ये कोर्ट केस नहीं चलेगा, आप लोग प्रामाणिक हैं, हमने मान लिया। तो ये सीखने को मिल गया कि थोड़ी बहुत चीज़ों में ही हम इतनी टेंशन में आ जाते हैं। प्रभुपाद इतने बड़े कोर्ट केस में भी नहीं डरे। तो ये बस महिमा है भगवान की, उनकी। बस भगवान श्रील प्रभुपाद हमें भी ऐसी बहुत अच्छे तरीके से जो है कृष्ण भावनामृत संघ में लगाएं अच्छे से सब हमारी रक्षा करें, हम भगवान तक पहुंच पाएँ, ऐसा हमें रास्ता दिखाएं। यही हमारी एक इच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण